Hello everybody, welcome back. We're back with another video, and I could see your responses. You thoroughly enjoyed the previous video where we discussed about the various type of mutations, and in this particular video we'll be dealing with Mendelian disorders. Okay, so without any further ado, let's dive right into it. And I would intend and it's my assurance that by the end of this video, Mendelian disorders will be crystal clear to all of you. We will follow it up with an NCERT reading to ensure that nothing is missed from the textbook. So yeah, let's get started. All right. Okay. So first, let's actually discuss about the type of disorders that we have. So disorders की जब हम बात करते हैं, so हमारी book में we have two types of disorders. We have the Mendelian disorders and then we have the chromosomal disorders. ठीक है. डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं, डिसऑर्डर्स में हमारे पास दो तरीके की डिसऑर्डर्स है. ठीक है, वी हैव मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड वी हैव द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, देखो मेंडेलियन नाम क्यों पड़ा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, बिकॉज दे फॉलो द मेंडेलियन लॉ व्हिच वाज लाइक लॉ ऑफ डोमिनेंट, लाइक लॉ ऑफ डोमिनेंस, like there'll be a dominant trait, there'll be a recessive trait, like law of independent assortment, law of segregation, all of that. So they actually basically obey the Mendelian laws, so which is why hence the name. So Mendelian disorders, they follow the Mendelian laws, whereas chromosomal disorders definitely do not follow any Mendelian laws. Because basically what is pedigree analysis? When I say they could be traced through pedigree analysis. तो pedigree analysis होता क्या है? So देखो, I'm sure अभी हमने pedigree analysis के बारे में discuss नहीं किया. I have not uploaded a video on one, but I'm sure by now all of you must have a fair understanding of what pedigree analysis is. Pedigree analysis एक method है which is used in genetics where we study the inheritance patterns. ठीक है, कि जैसे कि फादर से बच्चे में कौन से traits आ रहे हैं, या in general पेरेंट्स से कौन से traits आ रहे हैं. So we study the inheritance pattern of traits, disorders and diseases across generations within a family. तो जैसे कि for example किसी family is most susceptible to cancer. ठीक है, और उनमें so जैसे हम कहते हैं like there are certain traits which runs in the family. जैसे कि if I say dancing runs in my family, like ठीक है, तो it runs in the family means a lot of members of the family have it. तो वही you are studying the inheritance patterns of a lot of traits, of a lot of diseases, disorders with the help of pedigree analysis, which is it's very much similar to like a family tree. You create a family tree and you trace it down. फिर आप पता लगा लेते हो कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका ऑफस्प्रिंग होगा उसमें ये पर्टिकुलर ट्रेट दिख सकता है या नहीं दिख सकता. ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को ट्रेस कर सकते हैं, बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ट्रेस नहीं कर सकते. ऑफकोर्स बिकॉज हम मेंडेलियन लॉ ही फॉलो नहीं कर रहे, तो ऑफकोर्स कैसे ट्रेस करोगे. देन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एक्चुअली अकर ड्यू टू जीन म्यूटेशंस. तो जीन में कोई म्यूटेशन की वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, वेराज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन द अदर हैंड दे आर अ रिजल्ट ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशंस और जीनोमैटिक म्यूटेशन. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स अकर ड्यू टू जीन म्यूटेशंस और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जैसे कि हमने पढ़ा, इट हैपेंस ड्यू टू ईदर क्रोमोसोमल एबरेशन व्हिच इज लाइक अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और जीनोमैटिक म्यूटेशन व्हिच इज चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हैविंग लाइक एन abnormal नंबर ऑफ क्रोमोसोम. टू बी मोर प्रिसाइज, एनीप्लॉइडी. वही मैंने बोला एनीप्लॉइडी. जीनोमैटिक म्यूटेशन में भी एनीप्लॉइडी. आई होप दैट्स क्रिस्टल क्लियर. ठीक है, अब सबसे पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर दैट विल बी डीलिंग विद इज कलर ब्लाइंडनेस. ओके, देखो कलर ब्लाइंडनेस, नेम प्रीटी मच इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. बेसिकली like you have a reduced ability to distinguish between certain colors. ठीक है, तो मतलब आप जैसे जो individuals who are suffering with color blindness, ठीक है, they are unable to distinguish between certain colors. Usually जो सबसे most common type of color blindness that we get to witness is the red and green color blindness. ठीक है, जहाँ पे मतलब simply अगर मैं पूछूँ तो it's basically what happens is it's like you're unable to distinguish between colors as compared to like a standard, like a normal human being. You are unable to differentiate between certain colors. ठीक है, जिसमें रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, अब रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं. ठीक है, तो देखो सबसे पहले वील डिस्कस अबाउट द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एज आई वाज सेइंग. अच्छा, कुछ चीज़ें जो याद रखनी है सिंपली, ऑफकोर्स जब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में पढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स इनहेरिटेड है. मतलब लाइक इफ फॉर एग्जांपल इफ लेट्स से समबडी हैज़ a color blindness, तो they are likely to pass it on to the next generation. वो शायद उनके बच्चे में भी फिर वो ट्रेट दिखे. सो इट्स इनहेरिटेड. और आप आगे जाके ये भी देखेंगे दैट basically it's seen in more men than women. तो more men than women are actually affected. ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है फॉर इनहेरिटेड कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज ऑफ कोर्स इनहेरिटेड है, राइट. व्हाट कैन यू डू अबाउट इट. ठीक है, अब लेट्स डिस्कस अबाउट द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. अब एक्चुअली में देखो रेड ग्रीन बेसिकली देखो, अब यहाँ पे मैंने मेंशन समथिंग कॉल्ड एज डाइक्रोमेशिया. ठीक है, तो डाइक्रोमेशिया बेसिकली डाई द वर्ड कम्स टू, तो बेसिकली डाइक्रोमेशिया एक कलर विजन डिफिशिएंसी है. जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, इट्स टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस
जहाँ पे somebody has only 2 type of functioning cones, मतलब 2 तरीके के functioning cones है. They have only 2 functioning cones in their eyes instead of the usual 3 होते हैं. तो they have only 2 functional cones. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, unable to distinguish between certain colors. जैसे कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को हम बोलते हैं प्रोटेनोपिया. ठीक है, वी रेफर टू इट एज प्रोटेनोपिया. अब ये प्रोटेनोपिया अब एक एक्चुअली में चीज़, ये पहली बात तो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है, इट्स एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम. पहली चीज़ क्या है, इट्स एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, राइट. एंड या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है. सो एक्स लिंक्ड मतलब बिकॉज जिसकी जीन है इट्स प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, इट्स एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव, मतलब इट विल ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ होमोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगी. अब जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, if you have, let's say you have a normal individual, normal colors as seen with normal eyes से colors ऐसे दिखेंगे, whereas the same colors as seen with red green color deficiency. तो आप देख लो, the individual is unable to distinguish between certain colors red and green. तो आप क्लियरली देख सकते हो, राइट. उनको पूरा रेड और ग्रीन कुछ ऐसे दिख रहा है, तो they are unable to distinguish between the two. तो याद रखिएगा, ये X-linked recessive है, means the gene of the color blindness is actually present on the X chromosome. And it is recessive से मतलब है it will only express itself in homozygous condition. Heritable है, like it can be inherited, right? So far so good. अब देखो, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको, recessive का मतलब क्या है, like अगर for a person to have color blindness they will need 2 copies of the affected gene. ठीक है, अब जैसे मैंने बोला males are more susceptible to it. You'll get to know why. Actually ना देखो, males में क्या दिक्कत हो जाती है ना, males they are hemizygous फॉर एक्स क्रोमोसोम. ठीक है, तो मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है. ठीक है, तो लेट्स से अगर उस एक एक्स क्रोमोसोम पे दे हैव दिस कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन एक्टिवेटेड, ठीक है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है, तो दे आर लाइकली टू एक्सप्रेस इट. ठीक है, बिकॉज मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम. अ सिंगल अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम विल रिजल्ट इन कलर ब्लाइंडनेस, बिकॉज उसको काउंटरैक्ट करने के लिए कोई दूसरा एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, राइट. तो मेल्स आर हेमीजाइगस. हम क्या बोलते हैं, मेल्स आर एक्चुअली हेमीजाइगस. ठीक है, तो एक सिंगल अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम विल एक्चुअली रिजल्ट इन कलर ब्लाइंडनेस. बट फीमेल्स के लिए, फीमेल्स नीड टू हैव 2 एक्स क्रोमोसोम. दे हैव 2 एक्स क्रोमोसोम. देन फीमेल्स यूजुअली कैरियर्स होती हैं इफ वन इज अफेक्टेड. फीमेल्स में अगर एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है, सो दे आर नॉट अफेक्टेड. फीमेल्स में दे आर बेसिकली कैरियर्स. ठीक है, सो फॉर फीमेल्स टू बी अफेक्टेड बोथ द एक्स क्रोमोसोम्स नीड टू बी अफेक्टेड विद कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, which is why we say that color blindness is more common in males as compared to females. ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया, आप देखो, अब लेट्स से हम एक क्रॉस कराते हैं. लेट्स से वी हैव एन अंकल हियर एंड वी हैव एन आंट. और लेट्स से अंकल जो है, अंकल कलर ब्लाइंड है. ठीक है, तो अंकल का बेसिकली जो एक्स क्रोमोसोम है, मतलब एक्स क्रोमोसोम है, उस पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है. एंड देन वी हैव द वाई क्रोमोसोम. तो अंकल इज हेमीजाइगस. आंटी की बात करें तो आंटी लेट्स से शी इज़ अ कैरियर. शी इज़ नॉट अफेक्टेड, शी इज़ अ कैरियर बिकॉज उनके एक एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है. आई होप दैट मेक्स सेंस, राइट. अब क्या करेंगे, अब हम इनका पनिट स्क्वायर बनाएंगे. लेट्स ड्रॉ द पनिट स्क्वायर. ठीक है, तो लेट्स जस्ट सेपरेट द गैमेट्स. ओके, तो जैसे कि वी वर सेइंग कि लेट्स से द मेल इज़ अफेक्टेड एंड द फीमेल इज़ अ कैरियर. ठीक है, आप देखो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा. अब जीन्स को सेपरेट करो इनके, तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट डज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से. ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियरली स्टेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एग्जैक्टली बोलता है हमको कि लाइक ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन each pair of allele, like we have a pair of allele. ठीक है, तो each allele separates. ठीक है, तो वो pair of allele separate होते हैं such that each gamete, let's say we have a gamete here. Let me actually draw circles around. So such that each gamete will receive only 1 allele for a particular trait. ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियरली ये बोलता है, तो हम each gamete will have only 1 allele. ठीक है, तो हमने यहाँ पे gametes बना दिए. अब जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो दिस विल बिकम, एज यू कैन क्लियरली सी, ये बन जाएगा XC. This would become XCX. This would become XCY and this would become XY. ठीक है, अब इससे what are we able to deduce? Now let's deduce. मैंने क्या था, for females to be affected both the X chromosomes should have the color blindness वाला जीन. तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, ये जो फीमेल होगी अफेक्टेड होगी यहाँ पे. अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट है, इज प्रेजेंट इन ओनली 1 X chromosome. तो दिस फीमेल विल बी अ कैरियर. ठीक है, बिकॉज फॉर फीमेल टू बी अफेक्टेड बोथ द एक्स क्रोमोसोम्स हैव टू हैव द कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन. ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें मेल्स की केस में XCY, ऑफ कोर्स मेल्स जो होंगे अफेक्टेड होंगे
ठीक है, बिकॉज दे आर हेमीजाइगस फॉर एक्स क्रोमोसोम्स, उनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होता है, तो एक एक्स क्रोमोसोम अलोन विल बी एबल टू एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम विल एक्चुअली बी इनफ टू एक्सप्रेस द ट्रेट, ठीक है। तो विच इज़ वाई मेल्स में अ सिंगल अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम विल रिजल्ट इन कलर ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो मेल है लकीली XY ही विल बी नॉर्मल, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे वी वर एबल टू डिड्यूस सर्टेन कंक्लूजन। हम कुछ कंक्लूजन निकाल पाए। पहला था कि फीमेल के नॉट बी अ कैरियर, मेल्स के नॉट बी अ कैरियर। तो या तो मेल नॉर्मल होगा एज यू कैन क्लियरली सी, और मेल के अगर एक्स क्रोमोसोम पे, बिकॉज ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो मेल्स के एक्स क्रोमोसोम पे अगर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन हुआ, he will directly express the trait, वो एक्सप्रेस करेगा and that will result in color blindness. So males can either be normal or affected, males cannot be carriers. दूसरी चीज़ जो एक दिखती है वो है the criss-cross inheritance that you see. Another thing that we get to witness here is the criss-cross inheritance. Now what do we actually mean by criss-cross inheritance? Let me explain it. Without actually complicating the criss-cross inheritance, it's relatively simpler. देखो हम समझते हैं, ये जो क्रिस-क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न होता है ना, ये एक्चुअली एसोसिएटेड होता है विद एक्स लिंक ट्रेट्स, ठीक है। तो वो सारे डिसऑर्डर्स, सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं, उसमें वी गेट टू सी क्रिस-क्रॉस पैटर्न। क्रिस-क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, लेट्स से अ फादर हैज़ अ पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर, द फादर विल पास द ट्रेट टू हिज डॉटर्स, फादर विल नेवर पास इट टू द सन, फादर विल पास द डिसऑर्डर टू हिज डॉटर एंड द डॉटर कैन देन पास इट ऑन टू हर सन, ठीक है। तो ये क्रिस-क्रॉस होता है, लाइक बेसिकली the trait passes from a parent to his offspring of the opposite gender. Parent will pass to his offspring of the opposite gender, and then let's say opposite gender में वो offspring था daughter, so daughter will pass it to her, her offspring of the opposite gender, the son, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस पैटर्न चलता है, फादर से सन, सन से फादर से डॉटर, डॉटर से टू हर सन, और मदर से सन, और सन से टू हिज डॉटर। तो दैट्स व्हाट यू गेट टू विटनेस हियर। दूसरी चीज़ विच हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, फॉर फीमेल टू बी कलर ब्लाइंड, मैंने बोला दिस इज़ मोर लाइकली सीन इन मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स, बट अगर एक बेटी को कलर ब्लाइंड होना है, फॉर फीमेल टू बी कलर ब्लाइंड द फादर शुड बी अफेक्टेड। फीमेल कलर ब्लाइंड तभी होगी जब फादर इज अफेक्टेड विद कलर ब्लाइंडनेस एंड द मदर शुड बी एटलीस्ट अ कैरियर, अदरवाइज देयर इज नो वे इन हेल दैट द फीमेल इज गोइंग टू एक्सप्रेस द ट्रेट, ठीक है। अब क्लियरली हमने इस एग्जाम्पल में देखा था, राइट, द फादर वाज डेफिनेटली अफेक्टेड XY एंड द मदर वाज अ कैरियर। तो फॉर द डॉटर टू बी कलर ब्लाइंड द फादर हैज़ टू बी अफेक्टेड एंड द मदर हैज़ टू बी अ कैरियर एटलीस्ट, ठीक है। मदर भी अगर अफेक्टेड है तो देखो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स ना, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम हो जाती है, एंड ऑल दैट हैपेंस, बट मैंने क्या बताया, अ मदर शुड एटलीस्ट बी अ कैरियर, ठीक है। एंड यहाँ पे वी गेट टू विटनेस समथिंग कॉल्ड अ स्यूडो डोमिनेंस। So when I say that color blindness actually exhibits pseudo dominance, what do I actually mean is, देखो हम कुछ हद तक कह सकते हैं, like while we all know that ये recessive है, this is X-linked recessive, हम clearly mention करते हैं this is X-linked and recessive, but you see the expression of the trait in the males में हम क्या बोलते हैं, males में basically क्या हो रहा है ना, males में हम कह रहे हैं, तो मेल अगर मान लो जो मेल है, if it inherits the recessive allele for color blindness, let's say मेल ने अपने X क्रोमोसोम पे, male inherits the recessive allele for color blindness on his X chromosome. Even though the allele is recessive, he'll still be able to, express the trait. Why? Because of the absence of another chromosome with a normal, allele, which will mask the effect. I hope you're understanding what I'm trying to say here. Basically, देखो यहाँ पे अगर X chromosome, of course, X-linked recessive है, तो अगर मान लो मेल ने मेल के पास recessive allele है for color blindness on one of his X chromosome, and he will still be able to express the trait. उसमें trait तब भी दिखेगा because there is no other X chromosome which carries the dominant allele for the normal color vision, ठीक है, to suppress the effect. So in a way we can say that this does exhibit pseudo dominance. Now let's quickly go through the lines of NCERT. NCERT में बहुत ही कम दे रखा है, as much as I know, but yeah, it's our duty to actually go through the lines, so we will do that. All right. Color blindness की जब हम बात करते हैं, color blindness it's a sex-linked recessive disorder due to the defect in either the red or green cone of the eyes, which results in failure to discriminate between red and green color. It's a sex-linked recessive disorder. अब ये sex-linked में यहाँ पे to be more precise, it's an X-linked disorder, ठीक है। Y क्रोमोसोम से नहीं, बिकॉज sex-linked अगर बोल रहे हो तो it might be related to the Y chromosome, and you'll see Y-linked तो हम Y-linked कोई भी disorder नहीं पढ़ेंगे, as far as our class 12 is concerned. So it's a X-linked recessive disorder which occurs due to
a defect in either the red or the green cones of the eye, and that results in a failure to discriminate or distinguish between red or green colors. Now this defect is due to mutation in certain genes which are present in the X chromosome. तो थोड़ी कुछ mutation होती है in certain genes which are actually present in the X chromosome. It occurs in about 8% of the males and only about 0.4% of females. तो ये एक data है which you have to remember, because of course you know this might be a potential future question, because question I know the examiner clearly states that they will not go beyond the beyond the textbook when it comes to biology. मतलब there's no ठीक है, but you know it's completely up to them as to how they frame the questions, right? The question framing part is completely up to them, so not even a single line has to be missed. So just remember the fact that it occurs in about 8% of males, 8% males and लगभग 0.4% of females. Okay, I hope that makes perfect sense. ठीक है. Now continuing the reading further, this is because the genes that have led to red-green color blindness are on the X chromosome. ऐसा क्यों होता है? Because जो genes हैं genes है color blindness की that are actually present on the X chromosome, and males have only one X chromosome and females have two. The son of a woman who carries the gene has a 50% chance of being colorblind. जो son है एक woman का who's actually carrying the gene, ठीक है, जो son है, जो बेटा है एक औरत का who is the carrier, he has a 50% chance of being colorblind, because क्या पता women is a carrier, right? तो women अगर carrier है तो उसका this is what the genotype would be, right? So हमें पता है sons actually inherit the X chromosome from their mothers, right? So there's a 50% probability या तो वो वाला X chromosome inherit करेगा which has the color blindness gene on it, ठीक है, या फिर वो एक normal X chromosome inherit करेगा, which is why we say that the son of a woman who's a carrier of the gene has a 50% chance of being colorblind. I hope you understood it. ठीक है. The mother is not herself colorblind because the gene is recessive. Mother खुद colorblind नहीं है because the gene is recessive. And I said कि ये of course recessive allele है, so which basically means that for her to be able to express the trait she would require 2 copies. ठीक है. This means that its effect is suppressed by her matching dominant normal gene. ठीक है. तो बिकॉज हम बोलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, जिसका मतलब है कि मदर जो कैरियर है शी इज हरसेल्फ नॉट कलर ब्लाइंड, वो खुद कलर ब्लाइंड नहीं, शी इज जस्ट कैरियर, बिकॉज जो जीन है कलर ब्लाइंडनेस की एक रिसेसिव है. इसका मतलब इसका जो अफेक्ट है इट विल बी सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन. A daughter will not normally be colorblind unless her mother is a carrier and her father is colorblind. तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया. I hope that makes sense. NCERT was crisp way में she just sums it all up. Okay. Now let's move on to the next Mendelian disorder, which is our favorite, hemophilia. I'm sure not like a favorite, but let's just try and understand what is exactly hemophilia. How do you go about it? So as we were discussing about hemophilia, देखो hemophilia को हम it's a bleeding disorder basically, जहाँ पे जो आपका blood है ना, blood does not clot, blood आपका clot ही नहीं होता. It's a very rare disorder in which the blood doesn't clot normally. तो usually hemophilia occurs, usually hemophilia जो होता है वो inherited है, ठीक है. तो hemophilia एक bleeding disorder है, it's a blood disorder. It is X-linked recessive again, जैसे कि just like color blindness, this is also X-linked recessive. ठीक है. तो अब हम समझते हैं कि बेसिकली कैसे how do you go about it and what exactly happens. So it's a disorder जिसमें blood does not clot normally, ठीक है, due to various reasons which we will study in a while. So अब exactly इसमें क्या होता है, ये typically inherited होती है. पहली चीज़ तो inherited है, which is why we are studying them, and Mendelian disorders inheritable है. तो अगेन when I say X-linked का बेसिकली मतलब क्या, X-linked का बेसिकली मतलब है the genes which are associated with the hemophilia, ठीक है, they're actually located on the X chromosomes, ठीक है, which is one of the 2 sex chromosomes. So yeah, that's exactly what happens. And when I say recessive, which means an individual will need 2 copies of this gene, of the altered gene or of the hemophilia gene, to be able to express the disease. Since males have only 1 X chromosome, बिल्कुल सिमिलर है, अभी आप रिलेट करते जाइए. सिंस मेल्स हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम, ठीक है, मेल्स के पास सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम होता है, दे आर मच मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय हीमोफिलिया इफ़ दे हैव इनहेरिटेड एन ऑल्टर्ड X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर्स. ठीक है, तो मेल्स के पास सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम होता है, सो दे आर मच मोर लाइकली टू बी एबल टू एक्सप्रेस इट, ठीक है, बिकॉज उनके में फिर वो अगेन हेमीजाइगस कंडीशन हो जाती है एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस. ठीक है, फॉर अ फीमेल टू बी एबल टू एक्सप्रेस इट, व्हाट विल हैपन, they will actually require, a female can only have hemophilia if she has inherited an altered gene from both the parents. ठीक है, which means that if there's one altered gene in this one normal gene, the female would not normally express the trait. Again बहुत सिमिलर है. अब हीमोफीलिया भी 2 तरीके का होता है, वी हैव हीमोफीलिया ए, वी हैव हीमोफीलिया बी. हीमोफीलिया ए को हम रॉयल डिसीज़ बोलते हैं, हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिसीज़ बोलते हैं.
अब टू बी मोर प्रिसाइज विद ऑल ऑफ यू, एक्चुअली में हम हीमोफीलिया को इन जनरल रॉयल डिसीज़ बोलते हैं। हीमोफीलिया ए का ऐसा कोई नाम नहीं है, बट हीमोफीलिया बी को हम डेफिनेटली क्रिसमस डिसीज़ बोलते हैं। हीमोफीलिया ए अब जैसे यहाँ पे मेंशन है एक रॉयल डिसीज़, हीमोफीलिया को इन जनरल हम रॉयल डिसीज़ बोलते हैं, नॉट हीमोफीलिया ए, ठीक है। अब हीमोफीलिया को वाई डू वी कॉल इट अ रॉयल डिसीज़, बिकॉज ये जो हीमोफीलिया का जीन था, राइट, दिस वॉज एक्चुअली पास फ्रॉम क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, हु वॉज अ हीमोफीलिया बी कैरियर, हु वेंट ऑन टू बिकम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। उनसे दिस वॉज पास्ड ऑन टू हर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, उनके बच्चों को पास हुआ, एंड देन द किड्स पास्ड ऑन द जीन। सो बेसिकली इट रन्स इन द रॉयल फैमिली, सो दिस डिसीज रन्स इन द रॉयल फैमिली एंड दैट्स वेयर इट एग्जैक्टली डिराइव्स इट्स नेम, ठीक है। अब हम बात करें हीमोफीलिया बी की, तो हीमोफीलिया बी इज़ डेफिनेटली नोन एज क्रिसमस डिसीज़, उसको क्रिसमस डिसीज़ बोलते हैं। आई गेस क्रिसमस, आई गेस इट वॉज आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्रिसमस डिसीज़ इसलिए बोलते हैं। अच्छा, हीमोफीलिया जो होता है इट्स एक्चुअली कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ अ क्लॉटिंग फैक्टर विच इज़ द क्लॉटिंग फैक्टर 8, ठीक है। तो हीमोफीलिया ए इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर ए, वेयरएज हीमोफीलिया बी, ये जिसको हम क्रिसमस डिसीज़ भी बोलते हैं, इट्स एक्चुअली कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9। आई होप दैट मेक सेंस, राइट। अब एग्जैक्टली क्या अब ज़्यादा हमें कॉम्प्लेक्सिटी में तो जाना नहीं, इट्स प्रीटी मच सिमिलर टू द अदर वन, ठीक है, द प्रीवियस वन। अब लेट्स से अगेन, लेट्स से मेल कैरियर है XHY and the female, the male is affected and the female is a carrier. Again उस केस में क्या होगा, now when you make the gametes, एक हो जाएगा XH, एक हो जाएगा X, एक हो जाएगा XH, एक हो जाएगा Y. Now when you actually fuse them, what is that you get, what is that you obtain here, क्या मिलता है आपको, you get like an XH XH, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे XH XH, यहाँ पे you have XH X, here you have XHY and here you have an XY. Now what do we actually mean, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि हम क्लियरली देख सकते हैं, like out of the daughters 50% of them will be hemophilic if the father is affected individual and the mother is a carrier. The daughter, 50% of the daughters will be hemophilic and 50% of them will be carriers, whereas in the case of sons 50% of them would be affected and the other 50% would be normal, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने XH और XH जो मैंने फीमेल्स को दिखाया, अफेक्टेड फीमेल्स को, आई हैव रिटन द वर्ड कॉल्ड डाई। मेल्स में मैंने ऐसा नहीं लिखा, फीमेल्स में मैंने लिखा है जो हीमोफिलिक फीमेल्स होती हैं दे डाई, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्चुअली बहुत कम होती है। देखो डाई ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, देखो पहली बात तो फीमेल्स का टू बी कैरियर वो ही बहुत, सो फॉर फीमेल्स टू बी अफेक्टेड वो एक थोड़ा रिलेटिवली इट्स रेयर, बिकॉज मोस्ट फीमेल्स दे आर जनरली कैरियर्स, ठीक है, और दे हैव लाइक माइल्ड ब्लीडिंग सिम्टम्स, कोई भी माइल्ड ब्लीडिंग होती है, मतलब दे कैन सर्वाइव इन अडल्टहुड, वो एडल्टहुड तक जा सकती है, इवन दे कैन हैव चिल्ड्रन। बट ये जो सीवियर हीमोफीलिया विच इज़ लाइक द फीमेल्स बीइंग अफेक्टेड, ये रिलेटिवली रेयर होता है, बिकॉज आप क्लियरली देखो फीमेल्स में पहला आप ले लो, यू टेक द केस ऑफ द फर्स्ट मिनार, ठीक है, मिनार की ले लो आप, उसमें पीरियड्स के टाइम पे व्हेन यू हैव एक्सेसिव ब्लीडिंग द फीमेल, वो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, ठीक है, वहीं पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो यूजुअली फीमेल एज अफेक्टेड इंडिविजुअल्स रेयर होता है, बिकॉज इन रेयर केसेस में ही फीमेल्स विल इनहेरिट द 2X क्रोमोसोम्स विद हीमोफीलिया जीन, एंड या बट अगर ऐसा है तो इस फीमेल्स कैन हैव सिवियर हीमोफीलिया एंड देन दे माइट डाई, बिकॉज ब्लीडिंग तो बहुत कॉमन है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बहुत ही कम हो जाएगी, एवरी मंथ दे ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉट नहीं होता है बहुत जल्दी से, सो या मतलब लेस चांसेस होते हैं सर्वाइव करने के एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। वेयर इफ़ यू टॉक अबाउट मेल्स में तो मेल्स में तो दिखती है कंडीशन काफ़ी, 50% ऑफ द मेल्स आर अफेक्टेड एंड 50% ऑफ देम आर नॉर्मल। अगेन द सेम थिंग, क्रिस क्रॉस पैटर्न है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। फॉर फीमेल टू बी अफेक्टेड, फीमेल इज ओनली अफेक्टेड इफ द मेल और हर फादर इज अफेक्टेड, एज यू कैन क्लियरली सी इन दिस केस the father was definitely affected and the mother should at least be a carrier. Pseudo dominance का केस हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, राइट, pseudo dominance का केस हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। लेकिन if I ask you certain questions, let me actually frame the questions accordingly and let's see if you're able to answer them. Now if I ask you how many of the affected individuals or how many of the offsprings are affected, कितने offspring affected हैं, so we can clearly say that 50, I said offsprings and not child or like a girl or a boy, I said offsprings, so हम clearly देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ offsprings की, so we can clearly see 50% of the offsprings are affected, right, 50% of the offsprings are affected. Now if I ask you, let's say how many what is the percentage, like what percent of daughters will actually be carrier, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 50% of the daughters will actually be carriers
50% डॉटर्स कैरियर होंगी इस केस में। एंड यहाँ इस पर्टिकुलर पनेट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जनरल नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पनेट स्क्वायर के रेफरेंस में बात करें। यहाँ पे 50% ऑफ द डॉटर्स विल बी एक्चुअली कैरियर्स एंड द अदर 50% वुड बी अफेक्टेड, ठीक है। उसके बाद मैं अगर ये पूछूँ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर्स बीइंग नॉर्मल, 0 इस केस पे। द डॉटर्स आर आइदर गोना बी hemophilic or they are going to be carriers, ठीक है। I hope that made sense, ठीक है। Now let's move on and let's give it a read from the textbook. Hemophilia, again, this is this sex-linked recessive disease which shows its transmission from unaffected carrier female, unaffected है मतलब in the sense जो बेसिकली फीमेल्स कैन बी कैरियर, तो फीमेल जब फीमेल कैरियर्स होती है ना, मतलब काफ़ी केसेस में तो आप देखोगे ज़्यादा सिम्टम्स भी नहीं होते और दे हैव लाइक माइल्ड ब्लीडिंग सिम्टम्स एंड आई सेड, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल्स। अनअफेक्टेड तो नहीं होती हैं बट क्या किसी केसेस में कम सिम्टम्स होते हैं और लाइक देयर आर माइल्ड सिम्टम्स या माइल्ड ब्लीडिंग वगैरह होती है एंड हेंस दे कैन सर्वाइव इनटू एडल्टहुड एंड दे कैन इवन कंसीव। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो डिसीज़ है, this actually shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny that has been widely studied. In this disease, a single protein that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected. Due to this, in an affected individual, a simple cut will result in non-stop bleeding. The heterozygous female, basically who is a carrier for hemophilia, she may actually transmit the disease to the sons. The possibility of a female become hemophilic is extremely rare, as I said. कि हीमोफीलिया फीमेल्स में होना दैट इज़ वेरी रेयर, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल, बिकॉज फिर ऐसे केस में क्या होगा, द मदर ऑफ द सच अ फीमेल शी हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड डेफिनेटली बी हीमोफिलिक विच इज़ अनवाइबल इन द लेटर स्टेजेस। अनवाइबल इज लाइक अनफर्टाइल हम कह सकते हैं इन अ वे, ठीक है। सो कह सकते हैं कि द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक दैट्स एक्सट्रीमली रेयर, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी होती है एक फीमेल की टू बी हीमोफिलिक तो बहुत रेयर होती है बिकॉज उस केस में द फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक अनवाइबल एंड फादर अगर हीमोफिलिक हो गए तो ही विल बी मोस्ट लाइकली अनवाइबल इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, विच इज व्हाट डू वी मीन बाय दिस, ठीक है। सो व्हेन आई से अनवाइबल मीन नॉट एबल टू सर्वाइव और लिव लाइक, ठीक है, because you know males with genetic disorders like hemophilia they may not be able to survive into adulthood, so they will be unviable in the later stages. और हम पढ़ते हैं the family pedigree of Queen Victoria, the family pedigree of Queen Victoria which shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease. I hope that makes sense. Okay, moving on to the next one, we have sickle cell anemia. All right, so sickle cell anemia की जब हम बेसिकली बात करते हैं, when we talk about sickle cell anemia, जहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया SCA से, इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर से मेरा मतलब है द जीन ऑफ sickle cell anemia is actually located on one of the autosomes. To be more precise, the sickle cell anemia gene is actually located on the on chromosome number 11. I'm sorry, it's actually located on chromosome number 11. अब basically यहाँ पे क्या होता है, there's a mutation in the hemoglobin gene which causes the red cells to become sickle shaped. I'll actually explain it to you, ठीक है। अब देखो exactly I will tell you how do you exactly go about it and what exactly happens. So basically बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं without complicating it. There's a mutation. ये सारी क्यों है? Because of certain mutations, ठीक है। So there's some sort of mutation in the gene which actually produces the beta globin chain of hemoglobin. Now I'm sure all of you must have a faint idea of what the hemoglobin में basically we have 4 chains. I'm not very sure. I guess मेरे पास chain का structure तो होना चाहिए. Okay, I have it here. ये किस में है? Thalassemia में, right? So this is what the structure of hemoglobin actually looks like, right? We actually have we have 2 alpha chains, as we can clearly see. 2 alpha chains होती हैं, then we have 2 beta chains. So basically there's a mutation in the gene which is producing these beta chains. There's a mutation in the gene which actually produces these beta chains, ठीक है। अब mutation होगा तो जो beta globin chain बनेगी, ठीक है, वो गलत chain बनेगी, राइट। अब इससे क्या होगा बेसिकली, अब एग्जैक्टली इसमें देखो क्या होगा ना, बेसिकली जो जीन है विच इज़ प्रोड्यूसिंग द बीटा ग्लोबिन चेन, अब दैट इज़ म्यूटेटेड, उसमें म्यूटेशन होती है। तो बेसिकली जो प्रोटीन बनेगा फॉर द बीटा ग्लोबिन चेन वो गलत प्रोटीन बनेगा, सो द स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन विल बी अफेक्टेड। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होगा बीटा ग्लोबिन चेन का दैट विल बी इम्पैक्टेड। अब बीटा ग्लोबिन चेन में डिफरेंस आ गया, बीटा ग्लोबिन चेन का स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, दैट विल लीड टू a change in the structure of the hemoglobin. If there's a change in the structure of hemoglobin, basically मतलब if there's production of abnormal hemoglobin, ठीक है,
विच विल कॉज द रेड सेल्स, ठीक है, जो वो रेड ब्लड सेल्स बनाएगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन से जो रेड ब्लड सेल्स बनेंगे विच विल कॉज द रेड ब्लड सेल्स टू बिकम सिकल शेप. तो द शेप ऑफ RBCs और द रेड ब्लड सेल्स विल बी अफेक्टेड. वो अफेक्ट हो जाएगी तो यू नो द ऑक्सीजन लेवल्स, ठीक है, वो सब का जो क्वांटिटी है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा. सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन गेट्स डिस्टर्ब. तो इन अ वे वी कैन से दैट यू नो सिकल सेल अनीमिया शोज, जो इसकी सिकल सेल अनीमिया की जो जीन है वो शो दैट शोज प्लियोट्रोपी, विच मीन्स वन जीन इज एक्चुअली अफेक्टिंग मैनी कैरेक्टर्स. हम क्लियरली देख सकते हैं बीटा ग्लोबिन चेन जो है हीमोग्लोबिन की, ठीक है, उसमें म्यूटेशन आया तो बीटा ग्लोबिन चेन जो है हीमोग्लोबिन की, उससे देयर विल बी अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन. और बीटा ग्लोबिन चेन के स्ट्रक्चर में चेंज आया, दैट विल लीड टू अ चेंज इन द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज आया, सो दिस abnormal hemoglobin will actually produce what? This abnormal hemoglobin will actually cause, इसकी वजह से दी RBCs will become सिकल शेप्ड वगैरह. तो शेप ऑफ RBCs अफेक्ट हो जाती है और RBCs की शेप इफेक्ट हो जाती है. बाइकॉनकेव से अगर सिकल शेप बन जाते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन गेट्स अफेक्टेड. दिस योर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स आर बीइंग अफेक्टेड. तो इट इन टर्न शोज प्लियोट्रोपी, हम कह सकते हैं. आई होप दैट्स क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है. तो याद रखना, एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो जो जीन होती है बेसिकली द जीन सिकल सेल एनीमिया में द म्यूटेटेड जीन वो होती है HBB जीन. दिस इज द HBB जीन. HBB जीन विल प्रोड्यूस इन abnormal हीमोग्लोबिन, और abnormal हीमोग्लोबिन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं HBS, विच मीन्स इट्स सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड है, हम ऐसे कह सकते हैं. अभी वी विल कम बैक टू दिस डायग्राम. लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन फर्दर. सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बट बिफोर आई गेट टू दिस पॉइंट्स शैल आई बी एक्सप्लेनिंग दिस फर्स्ट, और लेट्स एक्चुअली एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ठीक है. पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है सिकल सेल एनीमिया एंड ऑल ऑफ दैट. अब सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? सबसे अगर सिंपली पुट, व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया? देखो, सिकल सेल एनीमिया एक सिंपली अगर पुट एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें RBCs की शेप, the red blood cells, they actually convert into like a sickle shape, which is like a half moon shape. And yeah, in जो ये सिकल सेल एनीमिया बेसिकली जो सिकल सेल्स होते हैं, ठीक है, अब बिकॉज ये सिकल शेप्ड बन चुके हैं, राइट, सो इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वगैरह भी काफ़ी कम होती है. सो इट्स लाइक रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, दे यूजुअली राउंड एंड दे आर फ्लेक्सिबल, सो दे मूव ईजिली थ्रू द ब्लड वेसल्स. बट इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, कुछ रेड ब्लड सेल्स जो सिकल शेप बन जाते हैं, क्रीसेंट मून, हाफ मून शेप बन जाते हैं, लाइक सिकल शेप, एज यू कैन क्लियरली सी, हाफ मून शेप बन जाते हैं, ठीक है. दीज सिकल सेल्स दे बिकम थोड़ा रिजिड, दे बिकम लिटिल हार्ड, एंड यू नो विच इज़ वाई जो ब्लड फ्लो वगैरह होता है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता है थ्रू दीज सेल्स, ठीक है. And that's exactly what happened. Now when I say this is a substitution mutation, what do I actually mean? What do I actually mean when I say it's a substitution mutation? Substitution mutation हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया. तो इस केस में वो क्या है? देखो, इस केस में अगर देखो हम क्लियरली देखें, लेट्स से ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन है, दिस इज़ द सिकल सेल हीमोग्लोबिन जीन. तो हम क्लियरली देख सकते हैं, हम देखो इससे जो हमें प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है, प्रोटीन्स. तो यहाँ आई एम सॉरी 1 सेकेंड, इससे जो प्रोटीन बनेगा, देखो यहाँ पे mRNA जो बनेगा, एक होगा GAG, एंड बस क्या होता है ना, यहाँ पे GAG की जगह, A की जगह हमारे पास U आ जाता है. A की जगह क्या आ जाता है? हमारे पास U आ जाता है. व्हाट डज U स्टैंड फॉर? U इज़ यूरासिल, ठीक है, U यूरासिल होता है. तो एडेनिन की जगह जब यूरासिल आ जाता है, सो GAG एक्चुअली कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड. GAG एक्चुअली GAG एक्चुअली कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, वेयर G की अगर मैं बात करूँ, इट कोड्स फॉर वैलिन. सो बेसिकली जब हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, जहाँ पे अ पॉइंट म्यूटेशन, इट्स अ पॉइंट म्यूटेशन, राइट. ये पॉइंट म्यूटेशन ही तो है अगर मैं बात करूँ, तो ये पॉइंट म्यूटेशन ही तो है, वेयर ओनली वन बेस और लाइक वन न्यूक्लियोटाइड इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनदर. A gets replaced by U. A is actually being replaced by U, right? Only one base or one nucleotide is being replaced by another in the DNA sequence, right? And in that case, फिर क्या होता है, फिर हमारी जो बेसिकली जो बीटा ग्लोबिन चेन है, ठीक है, उसमें जो अमीनो एसिड होता है, वी हैव इंस्टेड ऑफ द अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड वी हैव वैलिन. तो हम कह सकते हैं कि जो बीटा ग्लोबिन जीन होती है, बीटा ग्लोबिन जीन में कुछ म्यूटेशन आया, ठीक है, उसने जो RNA प्रोड्यूस किया वो GAG की जगह GUG किया, एंड दैट विल रिजल्ट इन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड विद वैलिन, ठीक है. तो 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन पे, एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, ये बीटा ग्लोबिन चेन बनी है, प्रोटीन चेन है. बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड वी एक्चुअली हैव वैलिन, एंड दैट्स व्हाट लीड्स टू दिस, ठीक है. तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्यों कह रहे हैं.
and then it's also a transversion mutation. Why do I say it's a transversion mutation? ट्रांसवर्जन तो है ही ना, ट्रांसवर्जन हमने पढ़ा था ऑफ कोर्स, पिछली क्लास में. ट्रांसवर्जन में क्या होता है, वेयर इन लाइक द प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन आ जाता है, पिरिमिडीन की जगह प्यूरिन आ जाता है. हम क्लियरली देख सकते हैं एडेनिन क्या है, इट्स प्यूरिन, राइट. सो लाइक अ प्यूरिन इज एक्चुअली चेंज फॉर यूरासिल पिरिमिडीन है, राइट. तो प्यूरिन की जगह क्या आ जाता है हमारे पास, पिरिमिडीन आ जाता है, राइट. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. सो इट्स अ ट्रांजिशन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है. ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज बीइंग अफेक्टेड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. देन आई से इट्स अ मिससेंस म्यूटेशन. व्हाट डू आई मीन बाय इट्स अ मिससेंस म्यूटेशन? मिससेंस म्यूटेशन भी हमने पढ़ा था कैटेगोरिकली, हमने इसमें नहीं, बट वी हैव डेफिनेटली स्टडीड अबाउट इन मॉल बायो, ठीक है. जब हम बोलते हैं बेसिकली मिससेंस म्यूटेशन, इट्स अगेन अ पॉइंट म्यूटेशन. जब एक सिंगल बेस में आपने चेंज किया, लेट्स से हमारे पास यहाँ GAG था या फिर GTG था, या फिर हम mRNA के लेवल पे बात करते हैं मोर कैटेगोरिकली, जहाँ पे एक सिंगल बेस में चेंज हुआ डीएनए में जो डीएनए सीक्वेंस था हमारे पास GAG था, GTG था, तो ए की जगह T आ गया था वहाँ पे, राइट. सो सिंगल बेस चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन अमीनो एसिड, लेड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट अमीनो एसिड, ठीक है. तो सिंगल बेस चेंज की वजह से लेड टू द चेंज इन द अमीनो एसिड विच इज़ बीइंग कोडेड. तो इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड इट लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ वैलिन, ठीक है. तो इट्स अ मिससेंस म्यूटेशन. प्लियोट्रोपी मैंने बताया, वेयर अ सिंगल जीन हैज़ मल्टीपल इफेक्ट्स. ये एक लीथल अलील है. व्हाई डू आई से इट्स लीथल अलील? तो व्हाट डू एक्चुअली मीन बाय लीथल अलील? देखो, हम सबको पता है, अभी हमने पढ़ा कि इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, जिसमें इसका जीन जो होता है इट्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम नंबर 11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये जो HBS बेसिकली ये सिकल सेल अनीमिया का जो जीन होता है ये रिसेसिव होता है, ठीक है, रिसेसिव होता है. अब ये हमें रिसेसिव की तो बात नहीं होगी एक्चुअली, लेट मी फ्रेम द सेंटेंस इन अ बेटर वे. या रिसेसिव होता है बेसिकली, मतलब इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन दी होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, होमोजाइगस. तो इमेजिन जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, HBS ऐसी वाली कंडीशन में, ठीक है, HBS कंडीशन में प्रेजेंट है, ठीक है. व्हेन वी हैव दी HBS कंडीशन, यानी हमारे पास जो दोनों क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 11, उसमें दोनों में हमारे पास ये जो है म्यूटेटेड जीन है. तो इट मीन्स दैट इंडिविजुअल्स हु हैव 2 कॉपीज ऑफ दिस अलील, HBS अलील, दे विल हैव सिकल सेल डिसीज. इसमें तो पूरे 100% जो RBCs होंगे वो सब सिकल शेप्ड होंगे, एंड दैट कैन बी फेटल, राइट. वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, माइट इवन लीड टू डेथ, ठीक है. तो इसमें तो अगर दोनों इंडिविजुअल्स, लाइक इफ एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस फॉर सिकल सेल, दे हैव अ सिकल सेल डिसीज, में सारे ही आपके RBC सिकल शेप्ड होंगे, तो दैट विल लीड टू अ मच शॉर्टन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बहुत ज़्यादा शॉर्टन लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी, अनीमिया वगैरह, एंड यू हैव अ हायर रिस्क ऑफ मोर्टैलिटी, लाइक यू हैव अ हायर चांस ऑफ डाइंग, ठीक है. आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है. उसके बाद कोडोमिनेंस का फिनोमेना दिख रहा है. कोडोमिनेंस मतलब इन द सेंस कि कोडोमिनेंस इन द सेंस मैं कह सकती हूँ कि लेट्स से अगर कोई हेट्रोजाइगस है फॉर सिकल सेल अनीमिया, लेट्स से ही हैज लाइक अ नॉर्मल HbA जीन एंड लाइक अ HBS जीन, तो इसमें ना ये कोडोमिनेंस शो करे. कोडोमिनेंस मतलब 50% RBCs जो होंगे वो आपके नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप होंगे और 50% सिकल सेल सिकल शेप्ड होंगे, ठीक है. तो कोडोमिनेंस भी दिखा रही है, और ऑटोसोमल रिसेसिव तो है ही. आई होप दैट मेक सेंस. सबको समझ आया? जैसे एग्जैक्टली दी टर्न. अब एक्चुअली में पता है ये जो सिकल सेल अनीमिया है ना, वे प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू मलेरिया. मैं आपको बताती हूँ कैसे, ठीक है. बट बिफोर दैट लेट्स एक्चुअली लुक एट द प्रोसेस. तो पता है सिकल सेल बेसिकली अगर आपको सिकल सेल अनीमिया, आई एम नॉट सेइंग कि हो किसी को, बट टू सम एक्सटेंट इट इवन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिवियर मलेरिया. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को सिकल सेल अनीमिया है दैट विल कम्प्लीटली एलिमिनेट द रिस्क ऑफ हैविंग मलेरिया. नाउ दैट इज नॉट द केस, बट स्टिल योर चांसेस ऑफ एक्वायरिंग द मलेरियल डिसीज इट्स वेरी लेस लाइकली, बहुत कम होता है. एक्चुअली पता है यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली आई टेल यू. सो बेसिकली जो सिकल शेप्ड RBCs होते हैं, ठीक है, लाइक नॉर्मल RBCs की बात करते हैं. अगर मान लो हमारे पास नॉर्मल RBC है तो इसमें मलेरियल पैरासाइट आएगा, ठीक है. अब लेट्स से नॉर्मल RBC फ्लो कर रहा है, मलेरियल पैरासाइट एंटर किया इनटू द RBC को स्टिक कराएगा टू द ब्लड वेसल्स, RBC विल स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, मल्टीप्लाई करेगा RBC में एंड लेड टू द बर्स्टिंग ऑफ RBCs. यही होता है मलेरिया में, ठीक है, यही होता है. अब पता है क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास वी हैव लाइक दिस abnormal RBCs और लाइक द सिकल शेप्ड RBCs, that will make it difficult or for the malarial parasite to invade these sickle cells. Basically जो sickle shaped RBCs होती हैं they are less likely to be invaded by these malarial parasite, because malarial parasite बोलता है who are you, what are you, मतलब I've never seen this before, ये RBC तो नहीं है, ये क्या है भाई.
तो बहुत लेस लाइकली होता है कि एक मलेरियल पैरासाइट रिकग्नाइज कर पाए सिकल सेल्स को और उसमें एंटर कर पाए। बट मान लो अगर कर भी लेता है, सो द सिकल सेल्स दे मेक इट डिफिकल्ट फॉर मलेरियल पैरासाइट टू मल्टीप्लाई, बिकॉज उनका शेप देखो ना, तो मलेरियल पैरासाइट अच्छे से मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। अच्छा, एक और चीज़, जो सिकल सेल्स होते हैं, ठीक है, दे आर ईजिली डिस्ट्रॉयड, दे आर बेसिकली, आपको सिकल शेप दे तो हमारी बॉडी क्या करती है ना, बॉडी ट्राइज टू गेट रिड ऑफ देम, बॉडी ट्राइज टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ देम। तो बेसिकली उनका प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन होता है, सो दे बेसिकली दे आर मोर ससेप्टेबल, दे आर मोर प्रोन टू प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन। तो हम इसको बहुत जल्दी ये स्प्लीन में जाते हैं, स्प्लीन में जाके हम इसे मार देते हैं। सो वी डिस्ट्रॉय दीज सिकल सेल्ड RBCs एंड देयरबाय रिमूविंग द पैरासाइट अलॉन्ग विद द सिकल सेल्स, ठीक है। तो मतलब बहुत लेस लाइकली हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अ केस, वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। एंड लेट्स सी, लेट मी चूज डिफरेंट कलर, लेट्स गो विद ब्लू। ओके, लेट्स से हमारे जो अंकल हैं, ही इज़ अ कैरियर एंड द आंटी एज वेल इज़ अ कैरियर, ठीक है। तो हमारे अंकल आंटी दोनों कैरियर हैं। एक नॉर्मल जीन है इनमें HbA एंड HbS इज़ द अफेक्टेड जीन और द अफेक्टेड जीन, ठीक है। तो लेट्स से इनके ऑफस्प्रिंग्स अगर हम बनाएं, आंटी का बना तो एक हो गया HbA, आंटी का अगर ऑफस्प्रिंग बनेगा तो इट विल बी HbA, ठीक। 1 सेकेंड, आंटी का ऑफस्प्रिंग, ओह माय गॉड वाई इज इट नॉट वर्किंग, आंटी का ऑफस्प्रिंग बनेगा, इट विल बी HbA, मतलब एक ऑफस्प्रिंग, सॉरी आई एम सॉरी, माय बैड, इट्स अ स्लिप ऑफ टंग, आई एम सॉरी। जो आंटी का एक गैमेट होगा उसमें एक नॉर्मल जीन जाएगा, एक नॉर्मल जीन जाएगा और एक ये HbS वाला एक ये अफेक्टेड जीन जाएगा, ठीक है, एक अफेक्टेड क्रोमोसोम जाएगा। और अंकल की गैमेट्स में वी हैव वन में HbA एंड द अदर वन विल हैव HbS। आई होप दैट मेड सेंस, ठीक है। अब क्रॉस करा के देख लो, क्या क्रॉस करा के देख लो, ठीक है। यहाँ से HbA, ठीक है, यहाँ से HbA HbS, यहाँ से HbA HbS और यहाँ से HbS। आई होप दैट मेड सेंस, सबको समझ आया? ओके, अब देखो क्लियरली एग्जैक्टली देखते हैं क्या होता है। HbA बेसिकली ये इंडिविजुअल बड़ा लकी है, ही विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब ये वाले इंडिविजुअल की बात करते हैं, HbA HbS, ही विल बी अ कैरियर, ठीक है, बिकॉज इसमें एक जो क्रोमोसोम है उस पर जो जीन है वो अफेक्टेड है, ही इज कैरिंग द जीन एटलीस्ट, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे HbA HbS अगेन अ कैरियर एंड देन वी हैव HbS HbS अफेक्टेड। तो अगर मैं पूछूँ लाइक नॉर्मल टू कैरियर का रेशियो कितना मिलेगा, तो नॉर्मल लेट्स से अगर 4 में से एक नॉर्मल है और 2 कैरियर हैं, 1:2। अगर मैं पूछूँ व्हाट आर द चांसेस ऑफ द ऑफस्प्रिंग बीइंग, for example, if we have like a carrier male and we have a carrier female, what are the chances of their offspring being sickle cell anemic? So what are the chances कि उनके बच्चे को sickle cell anemia हो? So there's 25% chance, 25% chance हो कि उनका offspring जो होगा वो offspring है ना। Here I'm not categorically mentioning daughters and sons because ये autosomal है, ठीक है। बट अगर आप इसे फैक्टर इंक्लूड करना चाहो मेल और फीमेल वाला, दैट विल इवन लाइक यू कैन इवन ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ। देखो जैसे अंकल हैड एन XY क्रोमोसोम, XY मेल्स में XY होता है और ही वाज अ कैरियर HbA HbS, आंटी अगेन XX क्रोमोसोम्स एंड HbA HbS अगेन कैरियर। तो आप एक्चुअली में कर सकते हो। अब देखो अंकल के कितने तरीके के जो वो बनेंगे हमारे पास गैमेट्स, हमने कैसे निकाला, कितने तरीके के गैमेट्स बनते हो, कैसे निकालते हैं, 2⁻n where n represent number of heterozygous condition, दो heterozygous condition है, 2⁻2 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मतलब एक बार X क्रोमोसोम के साथ HbA, फिर एक बार X क्रोमोसोम के साथ HbS, फिर एक बार Y क्रोमोसोम के साथ HbA एंड एक बार Y क्रोमोसोम के साथ HbS। आंटी के पास दोनों X क्रोमोसोम थे, तो एक बार तो X क्रोमोसोम HbA या फिर एक X क्रोमोसोम HbS। एंड नाउ यू कैन वर्क आउट द combinations for yourself and do let me know the answers below, ठीक है। अब एक्चुअली पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। सिकल सेल एनीमिया की जब मैं बात करती हूँ, दिस इज़ एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, इट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स, और दोनों पार्टनर्स क्या हैं, दे आर कैरियर फॉर द जीन। So it can be transmitted from the parents to the offspring when both the partners are a carrier for genes heterozygous condition में, जो कि हमने exactly अभी देखा। The disease is controlled by a single pair of alleles, disease control होती है बस single pair of alleles, ठीक है, HbA and HbS। Out of 3 possible genotypes, only homozygous individuals for HbS show the disease phenotype, ठीक है। Out of 3 possible genotypes, 3 possible genotypes में से, मतलब 3 possible genotypes है ना, like उसमें से खाली homozygous individuals for HbS, which means HbS they will show the disease phenotype, ठीक है। We have 3 types of genotypes, like out of the 3 types of genotypes, 3 तरीके की genotypes तो हैं। एक तो HbA नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, या फिर वो कैरियर हो सकता है HbA HbS, ठीक है, और द इंडिविजुअल कैन बी अफेक्टेड HbS HbS,
That's exactly what the NCERT textbook means, and NCERT says, categorically says that, out of the three possible genotypes, only homozygous individuals with HBS, मतलब HBS वाले, they show the disease phenotype. Heterozygous जो होते हैं HBS individuals, they appear apparently unaffected. मतलब mostly cases unaffected रहते हैं, but like they're the carrier of the disease. मतलब there's a 50% probability, of them, transmitting the mutant gene to the progeny. Of course, जो कि हम देखते हैं, right? Ankylantic carriers, so they had like a 50% probability of transmitting the mutant gene to the progeny and thus exhibiting sickle cell trait. The defect ये क्यों cause होता है? By substitution of glutamic acid. Glutamic acid की जगह क्या आ जाता है? Valine at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule. So what exactly happens? ये एक substitution और mutation है, जैसे कि मैंने बताया. So the substitution of glutamic acid की जगह valine आ जाता है at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule. Substitution of amino acid in the globin protein results. अब substitution किया amino acid का in the globin protein, that will result due to the single base substitution. So basically exactly यहाँ पे क्या हो रहा है ना, I'll tell you. तो basically जो substitution हुआ ना amino acid का like from glutamic acid to valine, it's because of it's due to the single base substitution. जो single एक nucleotide का substitution हुआ at the 6th position of the beta globin gene. G से क्या होगा? GUG. तो जो mutant hemoglobin molecule it will undergo polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of the RBCs from biconcave to elongated sickle-like structures. I hope that made sense. Okay, now moving on to another one. Oh my god, it's been quite a while. Alright, hold on. Okay, just give me 5 seconds, or 5-second voice rest. Alright, here we begin. As I was saying, phenylketonuria एक metabolic disorder है. You'll understand what that actually mean. Metabolic disorder means it's got something to do with the breakdown of a lot of substances. जैसे कि एक मिनट में बताती हूँ, we'll go step by step. अब actually में देखो, पहली बात तो phenylketonuria का ये जो gene होता है, it's actually present on chromosome number 12, तो which means it becomes an autosomal disease. Autosomal recessive होती है, to be more precise. अब phenylketonuria एक rare genetic condition है, ठीक है, and that occurs because of the build-up of phenylalanine in your body. अब exactly देखो क्या हो रहा है, I'll tell you. Let's zoom into it. As you can clearly see right now on your screens, right? So we have phenylalanine here. Phenylalanine जो होता है ना, it actually with the help of an enzyme called as phenylalanine hydroxylase, it actually gets converted into tyrosine. ठीक है, जो हमारी बॉडी में बेसिकली phenylalanine होता है, right? Phenylalanine which with the help of this particular enzyme called phenylalanine hydroxylase gets converted into tyrosine. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टायरोसिन में. अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है ना, phenylketonuria के केस में द बॉडी ये जेनेटिक डिसऑर्डर विच प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम कन्वर्टिंग phenylalanine इनटू टायरोसिन. इसमें phenylalanine अब क्या होता है जब ये डिसऑर्डर हो जाता है, so the body does not convert phenylalanine into tyrosine. So basically why is it happening? So basically this is happening due to the deficiency of the absence of the enzyme phenylalanine hydroxylase. तो ये जो enzyme है phenylalanine hydroxylase, क्या तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है या इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है या ये एब्सेंट ही होता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज phenylketonuria. So if there's the deficiency of the disease, if there's a deficiency of this enzyme phenylalanine hydroxylase, this was the enzyme which was actually responsible for converting phenylalanine into tyrosine. तो अगर ये एब्सेंट हो जाएगा या फिर इसकी कमी हो जाएगी, if there's a deficiency, that will actually hinder the whole process and that will prevent the body from properly breaking down phenylalanine into tyrosine. तो phenylalanine tyrosine में convert नहीं होगा. अब क्या होगा, phenylalanine will slowly start accumulating in your body. ठीक है, this leads to what? This leads to like a build-up of phenylalanine in the blood. अब phenylalanine जब accumulate होगा ना, it will not accumulate in the form of phenylalanine. Instead, it will accumulate in the form of phenylpyruvic acid. Phenylalanine will not just accumulate in the form of phenylalanine, but instead it will accumulate in the form of phenylpyruvic acid. Phenylpyruvic acid की form में accumulate होगा. ठीक है, अब phenylpyruvic acid क्या होगा ना, ये acid जो होगा, this might this can actually damage the brain and cause like a whole lot of other issues. अब देखो, अब एक्चुअली में पता है क्या था, अब देखो अब और एक चीज़ देखो, phenylalanine कन्वर्ट होता है टायरोसिन में. अब ये चीज़ रुक जाती है, राइट, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम phenylalanine hydroxylase. अब क्या होता है ना, तो पता है ये भी रिलेटिवली काफ़ी सिंपलर है. अब एग्जैक्टली देखो इसमें क्या होता है ना कि phenylalanine हमें सबको पता है कि इट एक्चुअली गेट्स मेटाबोलाइज टू टायरोसिन. अब जो टायरोसिन है हमारा, टायरोसिन इज़ एक्चुअली लाइक अ प्रिकर्सर.
इट्स लाइक अ डायरेक्ट प्रिकर्सर टू मिलानिन, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ डायरेक्ट प्रिकर्सर टू मिलानिन। अब क्या होगा ना, अब डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की, तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, दैट कैन लीड टू रिड्यूस मेलानिन प्रोडक्शन। अब रिड्यूस मेलानिन प्रोडक्शन विल कॉज व्हाट, इट विल रिजल्ट इन लाइटर स्किन और लाइटर हेयर, लाइक लाइटर हेयर, लाइटर स्किन, ठीक है। तो बेसिकली टायरोसिन जो एक डायरेक्ट प्रिकर्सर है टू मेलानिन, वो उसका प्रोडक्शन वो बन नहीं रहा, तो मेलानिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। सो एंड दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट स्किन, द लाइट हेयर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो हम कुछ सिम्टम्स लिख लेते हैं। पहली चीज़ तो मेंटल रिटार्डेशन, फिनाइल एलानिन इकट्ठा होता रहेगा बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड, या सो दैट माइट लाइक कॉज लाइक डैमेज टू द ब्रेन, सो मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, लाइट हेयर, लाइट स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगी बिकॉज देयर रिड्यूस्ड मेलानिन प्रोडक्शन विच विल एक्चुअली रिजल्ट इन द लाइट हेयर एंड लाइट स्किन। अच्छा, तीसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, इंक्रीज फिनाइल पायरुविक एसिड इन यूरिन इज डार्क कलर, लाइक व्हाट डू आई एक्चुअली मीन। अब देखो यहाँ से डार्क से मेरा ना, अब देखो मैं समझाती हूँ। देखो बेसिकली अगर आपकी बॉडी में इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है, अमाउंट, तो वो हम उस बॉडी इसको यूरिन के थ्रू एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी। तो क्या होगा, जब फिनाइल पायरुविक एसिड विल बी एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन, यू नो इट कैन बी एक्चुअली, तो ये फिनाइल कीटोनूरिया डिसीज़ को आप एक्चुअली डिटेक्ट कर सकते हो बिकॉज इट हैज़ लाइक अ कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन या ब्लू कलर का आपको यूरिन दिखेगा, थोड़ा डार्क ग्रीन, लाइक डार्क ग्रीन, थोड़ा डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू कलर का कैरेक्टरिस्टिक यूरिन दिखता है। सो बाय डार्क कलर हियर आई मीन लाइक बेसिकली को थोड़ा ग्रीनिश, लाइक थोड़ा डार्क ग्रीनिश या ब्लू कलर का यूरिन दिखता है। बिकॉज मैं डार्क कलर को स्पेसिफाई इतना इसलिए कर रही हूँ बिकॉज डार्क कलर का यूरिन, एकदम ब्लैक कलर का यूरिन आपको दिखता है इन अ सिमिलर कंडीशन विच इज़ कॉल्ड एज एल्कैप्टोन्यूरिया। एल्कैप्टोन्यूरिया अब है नहीं सिलेबस में, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग इट, ठीक है। लेट्स जस्ट डिस्कस व्हाट्स एक्चुअली रेलेवेंट एंड ओके, नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू द एनसीईआरटी रिव्यू। Okay, so now let's actually discuss, do the NCERT reading of phenylketonuria. Phenylketonuria को NCERT से भी पढ़ लिया जाए। Phenylketonuria, this inborn error of metabolism is also inherited as the autosomal recessive trait. तो मैंने क्या बोला, एक autosomal recessive trait है, इसका जीन क्या, have I mentioned the gene on which it, oh no, yeah, it's actually present on chromosome number 12, so just remember that. Extra information है, नहीं पूछेंगे एग्जाम में वैसे तो। ये जो है it's an error of metabolism, which means it's a metabolic disorder which is inheritable. It's inherited as the autosomal recessive trait. जो affected individuals होते हैं, they lack an enzyme, which is, what is the enzyme called? Can you name the enzyme, guys? Come on, let's do it together. It is phenylalanine. It's phenylalanine hydroxylase, right? I am sure all of you know it by now. All right. तो अब ये जो enzyme है basically phenylalanine hydroxylase, the individuals lack this enzyme, which converts the amino acid phenylalanine into tyrosine, and as a result of this, phenylalanine जो है gets accumulated in the body, and it eventually during accumulation it gets converted into phenyl pyruvic acid and other derivatives, and accumulation of these in the brain results in mental retardation. These are also excreted through the urine because of its poor absorption by the kidney. Kidney इनको absorb नहीं कर पाती, so they are excreted out through the kidney, and while they excreted out, they have a characteristic green or dark blue color. I hope that made sense. I really hope, because I'm really trying my best from my end to impart the best quality content. Okay, now let's move on to, I guess, how many more do we have? I think only left with, okay, we're left with 2. So this is the second last disorder, aka thalassemia, मतलब thalassemia, ठीक है। Now let's discuss thalassemia. देखो ये भी बहुत relatively simpler है, तो इसको काफ़ी complicate नहीं करते हैं। Let's just understand it simply. So again, it's an inherited blood disorder which will affect our body's ability to produce hemoglobin. तो basically hemoglobin जैसे produce होता है ना, वो affect हो जाएगा. So it will affect our body the ability to produce normal hemoglobin. तो basically hemoglobin, we're all aware, it's a protein in the red blood cells which allows oxygen transport, ठीक है, जो allow करता है oxygen transport को. I hope that makes sense. ठीक है, तो बेसिकली थैलेसीमिया इट्स लाइक अ क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर. सिकल सेल अनीमिया को हम कह सकते हैं वो क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर था, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ द ब्लड वाज गेटिंग अफेक्टेड, बेसिकली द शेप ऑफ द आरबीसीज वाज गेटिंग अफेक्टेड. ये ऑन द अदर हैंड ये क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है, इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर अगेन. अब एक्चुअली थैलेसीमिया भी ना इट्स कैरेक्टराइज बाय, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, इट्स कैरेक्टराइज बाय लेस ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन. बेसिकली हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है. आई एक्सप्लेन इट टू यू, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बट ओवरव्यू तो देखते हैं. 3 तरीके का थैलेसीमिया होता है. वी हैव द अल्फा थैलेसीमिया, वी हैव बीटा थैलेसीमिया, एंड वी हैव द डेल्टा थैलेसीमिया. लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज.
like let's understand each of these in detail. अब देखो अल्फा थैलेसीमिया की अगर मैं बात करूँ ना, तो अल्फा थैलेसीमिया होता है जब लाइक सी हम क्लियरली हमें पता है राइट, हमें बस 2 अल्फा चेंज होती है, 2 बीटा चेंज होती हैं. तो इट occurs when you know like how do I put it, we have you inherit 2 from the pair. Okay, let me actually rephrase myself. तो इट एक्चुअली हैपन जब आपकी जो अल्फा बेसिकली जो अल्फा जीन्स होती हैं ना वो मिसिंग होती हैं, लाइक विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा चेन. सो बेसिकली वो जब मिसिंग होती है तो आपकी अल्फा चेन नहीं बनती है राइट, आपकी सफिशिएंट अमाउंट में अल्फा चेन नहीं बनती है. तो व्हाट विल हैपन, देयर इज रिड्यूस्ड अल्फा चेन प्रोडक्शन. तो अब अल्फा चेन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो दैट विल लीड टू एन इंक्रीज बीटा चेन प्रोडक्शन. बीटा चेन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है और बीटा टेट्रामर बन जाता है, बीटा टेट्रामर बन जाता है. उससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है. अब अगर मैं बात करूँ इसकी जीन की, अल्फा थैलेसीमिया की, इट्स एक्चुअली प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16. बीटा थैलेसीमिया ऑन द अदर हैंड, देखो बीटा थैलेसीमिया में 2 केसेस आ जाते हैं. वी हैव बीटा माइनर एंड वी हैव द बीटा मेजर. बीटा माइनर को बीटा डैश और बीटा मेजर को बीटा नॉट से डिनोट करते हैं. बीटा माइनर एज द नेम इंडिकेट, यहाँ पे जो बीटा चेन को बनाने के लिए जीन है वो प्रेजेंट है. मैं ये नहीं बोल सकती एब्सेंट ही है, प्रेजेंट होगा अगर वो ठीक है कम अमाउंट्स में प्रेजेंट है तो यू नो देयर बी रिड्यूस नंबर ऑफ बीटा चेन्स, कम बीटा चेन्स बनेंगी. बट अगर मान लो वो बीटा चेन को बनाने वाला जीन जो है वो अगर एब्सेंट ही है, देयर बी नो बीटा चेन्स. इफ देयर नो बीटा चेन्स देयर बी हायर नंबर ऑफ अल्फा चेन्स, वो भी टॉक्सिक होगा. वही तो है कि आइदर एक्सट्रीम इज़ बैड. लाइक बॉडी में अगर एक सिस्टम है जहाँ पे 2 अल्फा 2 बीटा होनी चाहिए, दिस इज रीज़न टू इट राइट. अल्फा ज़्यादा होंगे तो भी दिक्कत है, बीटा ज़्यादा होंगी तो भी दिक्कत है. अच्छा लास्ट में एक और होता है हमारे पास डेल्टा थैलेसीमिया, जो कल लीस्ट सीवियर होता है बिकॉज ऑफकोर्स वो बस डेल्टा चेंज इतनी नहीं होती है. ठीक है, अब थैलेसीमिया की अगर मैं रीडिंग कर रहा हूँ एनसीईआरटी से, लेट्स से व्हाट एनसीईआरटी हैज टू से एंड देन इफ वी कैन ऐड ऑन टू इट, वी विल डेफिनेटली वोट. ओके. Okay, so once again now let's have a quick overview of the entire topic. Basically points that you must keep in mind is alpha. जब हम alpha thalassemia की बात करते हैं तो alpha thalassemia का जो gene which is responsible for it, which is HbA1 and HbA2, it's actually present on chromosome number 16 of both the parents, right? So because it's an autosomal recessive, it's actually present on the chromosome number 16 of both the parents. और अगर HbA1 या HbA2 जीन में अगर है मतलब 2 जीन्स मदर की क्रोमोसोम पे 2 जीन्स फादर की क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, एंड यू नो if there's an alteration or a mutation in one of the 4 genes or like maybe all 4, so that would lead to like less production of alpha chain, फिर alpha thalassemia हो जाएगा. बीटा थैलेसीमिया अगर मैं बात करूँ तो बीटा थैलेसीमिया की जो जीन है it's actually present on chromosome number 11, and I guess beta thalassemia, if I'm not mistaken, is actually controlled by HBB gene. Okay, HBB, it's a single gene, right? And delta thalassemia की तो as you know categorically NCERT ऐसी बात तो नहीं करता है, but just keep in mind that there's something called as delta thalassemia as well, जिसका gene actually present होता है on chromosome number 11 and it's relatively less severe. So now let's quickly go through the NCERT highlights of this particular disease, which is thalassemia. Okay, now let's go through NCERT. Well, let's see what NCERT has to say. All right. Okay. So when we say thalassemia, thalassemia is also an autosomal linked recessive blood disorder. It's an autosomal recessive blood disorder. It's transmitted from the parents to the offspring. माँ बाप से बच्चे में transmit होता है. When both the parents are unaffected carriers for the gene, ठीक है, both the parents have to be at least heterozygous. और मतलब दोनों पेरेंट्स कैरियर तो होने ही चाहिए फॉर यू नो देम टू पास द ट्रेट टू द ऑफस्प्रिंग. Now the defect could be due to either mutation or deletion, which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chains, alpha and beta, that make up the hemoglobin. So basically ये जो defect है thalassemia का, ये आता है because of like mutation or like deletion of you know one of the chains, one of the globin chains, या फिर alpha globin chains हो सकती है, beta globin chains हो सकती है, which actually make up the hemoglobin. तो उनमें से कोई भी उनकी चारों चेन में से कोई भी चेन डिलीट हो जाए वगैरह वगैरह, एंड ऑल ऑफ दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ abnormal hemoglobin molecule which result into anemia. I'm sure all of you would know. It's like anemia को हम कह सकते हैं like lack of hemoglobin, lack of RBCs. हाँ, ऐसे कह सकते हैं, right? So abnormal hemoglobin actually results in anemia, which is a characteristic of this disease. So this might be a potential question in the exam wherein they're asking
anemia is a characteristic of which of the disease? So it's thalassemia. Please pay attention, okay? अब thalassemia can be classified according to which chain of the hemoglobin molecule is affected. अब मैंने वही बताया आपको, thalassemia को हम classify करते हैं on the basis of कौन सी chain जो है hemoglobin की वो affect हुई है. Alpha thalassemia में जो production है alpha globin chain का that is affected, while in beta thalassemia the production of the beta globin chain is affected. अब alpha thalassemia is controlled by two closely linked genes. जैसे कि मैंने बताया alpha thalassemia को कौन कंट्रोल कर रहा है? दो क्लोजली लिंक्ड जीन्स है HbA1 एंड HbA2 एंड बोथ ऑफ दीज जीन्स आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 of each of the parent, and it is observed that due to a mutation or like some deletion in one of the four genes. Why they are referring to one of the four? Because HbA1 HbA2 दो जीन्स हो गई जो एक पेरेंट के क्रोमोसोम पे होंगी और यही दो जीन्स दूसरे पेरेंट के क्रोमोसोम पे होंगी, राइट? सो दे आर टोटल ऑफ 4 जीन्स. सो दिस इज अल्फा थैलेसीमिया ऑब्जर्व होता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन. द मोर जीन्स अफेक्टेड, जितनी ज़्यादा जीन्स अफेक्ट होंगी उतनी ही लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स या अल्फा ग्लोबिन चेन्स बनेंगी. वाइल बीटा थैलेसीमिया की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि alpha thalassemia it's controlled by two genes which is HbA1 and HbA2 which is present on chromosome number 16, and it is observed due to mutation or deletion in one or more of the 4 genes. और जितनी ज़्यादा जीन्स अफेक्ट होंगी ना और जितनी ज़्यादा जीन्स अफेक्ट होंगी उतना ही ज़्यादा अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल हो गए, अल्फा ग्लोबिन चेन होगी, उतनी ही कम अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स या अल्फा ग्लोबिन चेन्स प्रोड्यूस होंगी. बीटा थैलेसीमिया की अगर मैं बात करूँ, बीटा थैलेसीमिया एक सिंगल जीन से कंट्रोल होता है विच इज़ HBB जीन विच इज़ एक्चुअली प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11. सो जस्ट कीप इट इन माइंड कि अल्फा थैलेसीमिया के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज HbA1 एंड HbA2 विच इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, whereas if we talk about beta thalassemia which is actually controlled by a single gene HBB, it's actually present on chromosome number 11. ठीक है, then the beta thalassemia is actually controlled by a single gene which is the HBB gene which is present on chromosome number 11, and it occurs due to mutation of one or both the genes. ठीक है, तो ये भी होता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन वन जीन जो एक क्रोमोसोम पे होगी एंड द अदर जीन विच इज़ ऑन द अदर क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम इज़ व्हाट आई मीन. अब थैलेसीमिया सिकल सेल अनीमिया से कैसे डिफर करता है? इट्स अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन. इनफैक्ट आई थिंक इट हैज़ बीन अ प्रीवियस क्वेश्चन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. थैलेसीमिया की अगर बात करूँ तो थैलेसीमिया इज डिफरेंट फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया in that the former is a quantitative problem. जो former है which is like thalassemia quantitative problem है कि quantity of the globin chains is being affected, तो quantity of hemoglobin molecules abnormal hemoglobin produce हो रहा है, right? So जो पहला वाला है वो एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन चेन्स, ठीक है, वेयर वी आर सिंथेसाइजिंग वेरी लेस ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. बाय द लैटर विच इज़ लाइक द सिकल सेल अनीमिया, वो एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है वेयर वी आर सिंथेसाइजिंग एन इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन, जहाँ पे एक गलत ग्लोबिन बना रहे हैं. तो बेसिकली थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है. लेट मी हाईलाइट दैट फॉर यू. थैलेसीमिया की अगर बात करूँ तो थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है. क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम इन द सेंस क्वांटिटी से मैटर है बिकॉज यहाँ पे वी आर प्रोड्यूसिंग फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल, वी आर प्रोड्यूसिंग वेरी लेस ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी. लेकिन अगर मैं लैटर यानी सिकल सेल अनीमिया की बात करूँ तो इट्स अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम इन द सेंस कि जो हमारे पास जो ग्लोबिन बन रहा है, राइट, it's an incorrectly functioning globin because glutamic acid is being replaced by valine. I hope that made sense. Now moving on to the last disorder for the day, which is cystic fibrosis, and that, with that I think we'll be good to go. We will have completed a major chunk of the chapter, which is Mendelian disorders. So in the previous video we have completed mutations. Now we're done with Mendelian disorders. We're only left with 3 chromosomal disorders, which we'll discuss in tomorrow's video. Okay, so without any further ado, let's just quickly get over with the last Mendelian disorder, which is mentioned in the textbook. I mean, of course, there are many Mendelian disorders which you will study about in your higher grades. So, okay, cystic fibrosis once and for all. Okay, so as we were saying, what do you understand by the term cystic fibrosis? Come on, tell me. तो देखो cystic fibrosis basically what you actually understand by cystic fibrosis, it's nothing but it, of course, it's an inherited disorder. It somewhere mainly affects your pulmonary system. कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपके pulmonary system and maybe to some extent we can say pancreas, but as such नहीं, but mainly it affects your pulmonary system. अब ये जो disease है, it's an autosomal recessive disease. It's an autosomal recessive disease. इसका जो gene है it's actually present on chromosome number 7. So you have to make a note of all the disorders and the gene and their respective genes कि वो कौन सी chromosome पे present है. You have to make a note of all of that. Okay, so अब cystic fibrosis, as I was saying, it's an autosomal recessive disorder. मतलब इसका एक तो autosomal है, इसकी जो gene है वो एक autosome पे present होगी, and recessive का मतलब this character will only express itself in the homozygous condition. इसकी जो gene होती है it's actually present on chromosome number 7.
and the gene which is actually responsible for causing cystic fibrosis is called, I guess if I'm not mistaken, it is CFTR. Oh yeah, it is CFTR. CFTR actually stands for, you don't have to remember the name, but just for the curious heads out there, CFTR actually stands for cystic fibrosis transmembrane conductance regulator. I know it's quite a mouthful, but you do not have to know the name, you do not have to remember the name because it's definitely not mentioned in the textbook. You just have to remember that there's a gene called the CFTR gene, which stands for cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene, which actually is responsible for cystic fibrosis, and this gene is actually present on chromosome number 7. अब इसमें actually क्या होता है ना, basically what really happens is the symptoms are quite variable. अगर मैं ऐसे pinpoint, so it's like a genetic disease which actually causes like sticky thick mucus to build up in your body. Like काफ़ी आपकी जो एक बहुत ज़्यादा thick mucus build up होने लगता है आपकी body में, especially like your airways and all. airways वगैरह काफ़ी affect हो जाते हैं. So basically damages your lungs and all. तो basically तो मैं आपको बताती हूँ what happens is like cystic fibrosis में there's like thick mucus starts building up in your lungs. ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नो cystic fibrosis it's a lung disease because it's affecting your lungs and your airways, which may but that's not always the case. मतलब it can also cause cysts in the pancreas वगैरह. pancreas में भी काफ़ी चीज़ें fibrosis वगैरह या cyst वगैरह बन जाती हैं, which is why we say yeah, because most common उसका symptom यही है कि there's a lot of thick and sticky mucus which actually gets formed in the airways, and which is why a lot of people tend to assume that it's a lung disease, which it's not, because it's equally affecting your pancreas. ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसके भी काफ़ी केसेस होते हैं, लाइक there's like classical cystic fibrosis, और फिर काफ़ी वेरिएंट होते हैं atypical वगैरह वगैरह, but you not have to go into the depth of it. Just remember as of now that the mucus lining, the mucus that lines your organs and body cavities, वो और ज़्यादा watery हो जाती है, और ज़्यादा watery हो जाती है, and this thick and sticky mucus which is formed. अगर आप एक normal airway देखोगे, normal airways look somewhat like this, which is like there's a thin layer of mucus which is coating or surrounding the airways. But here if you see, there's a thick and sticky mucus which is blocking the airways, right? So these are the airways which are affected by cystic fibrosis. फिर क्या होता है ना, इसमें exactly क्या हो रहा है? तो like why do I say okay, so basically जैसे कि हमें पता है कि it basically causes thick mucus in the, ठीक है, thick mucus produce हो जाता है, ठीक है. Thick mucus start building up in various organs like especially the lungs, and this mucus will obstruct airway. ठीक है, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक कर देगा एयरवे को, तो आप सांस लेने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है. नॉट जस्ट दैट, दिस म्यूकस विल एक्चुअली ट्रैप अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया. सो इफ आई वर टू जूम इट, एज यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे जो आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, राइट, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. ये जब ऐसे ये छेद दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट लाइक दीज आर बैक्टीरिया. सो बेसिकली दे विल ट्रैप अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया एंड या लीडिंग टू अ लॉट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. तो इनमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया वगैरह ट्रैप हो जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू लाइक अ लॉट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, yeah, that's it, and I guess और as such कोई symptoms नहीं है. So what are the main symptoms that one experiences? It is excessively salty sweat. बहुत ज़्यादा salty sweat होता है, lung damage हो जाता है, and as I said, there's cyst formation in both lungs and pancreas. तो इसको एक lung disorder consider करना, that would be relatively wrong. Now let's quickly go through what NCERT has to say about cystic fibrosis, and then let's wrap it up. Okay, so something that I just realized was that NCERT ऐसे categorically cystic fibrosis के बारे में mention करती नहीं है, but I think there have been questions, in previous years, I think, related to cystic fibrosis. So once again, let me actually show you the NCERT PDF for your satisfaction. So you can clearly see यहाँ Mendelian disorders हैं, ठीक है. Mendelian disorders में we first discuss about color blindness. Let me actually highlight it for all of you. So we first discuss about color blindness, ठीक है. color blindness के बाद directly we have hemophilia. Hemophilia के बाद we discuss about sickle cell anemia. Sickle cell anemia के बाद we discuss about phenylketonuria and then thalassemia. It nowhere mentions about the cystic fibrosis. So I think that's it for the video. Let's call it a day, and until we meet again, this is Dia signing off. I hope you had an amazing time.